بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں نازیہ خان۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں سونی عدنان، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ قرضوں سے انکار، سرمایہ کاری اور شراکت داری ترجیح۔ عالمی بینک پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری خوش آئند۔ صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ عالمی بینک نے سیلاب کے دوران بھرپور مدد کی، معیشت درست سمت اور ترقی کی جانب گامزن۔ ادارہ جاتی اور معاشی اصلاحات کا پروگرام تیزی سے جاری، کرپشن پر قابو پانے کے لیے نظام میں شفافیت لا رہے ہیں۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے مزید سفر طے کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے گفتگو، وفد کی پاکستان کے اصلاحاتی پروگرام پر عمل درآمد کی تعریف۔ پی ٹی آئی کی سیاست بد تہذیبی اور انتقام پر مبنی، معیشت تباہ، معاشرتی اقدار کا جنازہ نکال دیا، جمہوریت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا، محمد نواز شریف۔ پالیسیوں کے تسلسل سے معاشی ترقی یقینی ہوگی، عوام کو خوشحال بنا کر ترقی بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ نوجوان مستقبل کے رہنما، بدلتی دنیا میں کریں گے رہنمائی۔ کاروبار بے روزگاری کا علاج، 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرض کی فراہمی۔ پنجاب میں آسان کاروبار پروگرام کا اجرا۔ نوجوان جلاؤ گھراؤ نہیں، ملک کا ساتھ دیں۔ بیانیہ صرف ملک کی ترقی ہونا چاہیے، کسی کی پگڑی اچھالنا آسان، سنبھالنا مشکل۔ مخالفین کی سیاست دشنام ترازی اور ہاتھا پائی تک آن پہنچی۔ عوام نے فتنہ فساد کی سیاست مسترد کر دی، تقریروں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ عوام صحت، تعلیم اور روزگار چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک معاشی اڑان بھر چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب۔ چیمپئنز ٹرافی کا کاؤنٹ ڈاؤن، صرف 2 دن باقی، کرکٹ کا سحر جوش جنون میں بدل گیا۔ میگا ایونٹ کے تمام مقابلے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ ایونٹ کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ، جاندار تجزیے اور دلچسپ تبصرے دیکھیے پی ٹی وی نیوز پر۔ کرکٹ کی دنیا کا ہائی وولٹیج ٹاکرا، چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور بھارت ہوں گے آمنے سامنے۔ اہم میچ کے اضافی ٹکٹس بھی چند گھنٹوں میں فروخت۔ 23 فروری کو دبئی میں میدان سجے گا۔ کرکٹ کے دیوانے شدت سے مقابلے کے منتظر۔ 3 دہائیوں بعد پاکستان کرکٹ کے میگا ایونٹ کی میزبانی کے لیے تیار۔ دیدہ و دل فرش راہ، چیمپئنز ٹرافی کے لیے مہمان ٹیموں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ کپتان سٹیون سمتھ کی قیادت میں آسٹریلین ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ آسٹریلیا پہلا میچ انگلینڈ کے خلاف 22 فروری کو گدافی اسٹیڈیم میں کھیلے گا۔ ایونٹ کے تمام مقابلے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ گلی بھری بھری تجھے مجھے دیکھنے۔ گرین شرٹس چیمپئن ٹرافی میں اعزاز کے دفاع کے لیے تیار۔ کراچی میں 3 گھنٹے پریکٹس۔ بدھ کو میگا ایونٹ کے افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ نیشنل اسٹیڈیم میں مد مقابل۔ مقابلہ دن 2 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔
پاکستان سعودی عرب تاریخی اور مضبوط شراکت داری. خطے میں معاشی تبدیلیوں کے لیے سعودی عرب کا کلیدی کردار. پاکستان میں اصلاحات کا عمل جاری. معاشی استحکام کی بنیاد پر سعودی ویژن 2030 بہترین ماڈل. العلا کانفرنس ابھرتی معیشتوں کے لیے معاشی استحکام اور تعاون کا اہم پلیٹ فارم. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عرب نیوز کو انٹرویو. انسانی اسمگلنگ کے مکروہ دھندے کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات. ایف آئی اے نے 436 اسمگلرز گرفتار کر لیے. جائیدادیں ضبط اور بینک اکاؤنٹس منجمد. قرار واقعی سزا دی جائے گی. انسانی اسمگلنگ کے خلاف سخت قانون سازی. ناقابل ضمانت جرم تصور ہوگا. عمر قید کی سزا تجویز. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. پالیسیوں کے تسلسل اور امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں. 2035 تک 1 ٹریلین اکانومی بنیں گے. 5 ایز فارمولے کے تحت اڑان پاکستان کا منصوبہ بنایا گیا. ڈیجیٹل انقلاب دہلیز پر دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے. پاکستان 5G اسپیکٹرم کے لیے تیار. ڈیجیٹل پاکستان پالیسی سے ترقی مزید آسان ہوگی. وفاقی وزیر احسن اقبال. 9 مئی عسکری ٹاور حملہ سمیت 6 مقدمات. پروسیکیوشن کی مقدمات میں فرد جرم میں ترمیم کی درخواست منظور. شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم دوبارہ عائد کرنے کی ہدایت. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی. سماعت 20 فروری تک ملتوی. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں عوامی خدمت میں ناکام. کریڈٹ میں دھکم پیل کے سوا کچھ نہیں. گزشتہ 1 سال سے رہنماؤں کو بلا وجہ پارٹی سے نکالا جا رہا ہے. پی ٹی آئی سے نکالے گئے رہنما شیر افضل مروت کی میڈیا سے گفتگو. پارٹی کی ناکامیوں کا اعتراف. طویل خشک سالی کے بعد ابر رحمت برسنے کو تیار. بارش کا سسٹم پاکستان میں داخل. 19 فروری سے مختلف علاقوں میں بارش. پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی. وفاقی دارالحکومت خطہ پوٹوہار، گجرانوالہ اور لاہور میں بارش متوقع. پشاور، چترال، سوات، مانسیرہ، ایبٹ آباد میں بھی بادل برسیں گے. برف باری کا امکان. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش اور برف باری کی پیش گوئی. امریکہ میں موسم کی سختی. 10 افراد جان کی بازی ہار گئے. بارش، سیلاب اور شدید سردی. ریاست کینٹکی سب سے زیادہ متاثر. سینکڑوں بے گھر. 40,000 افراد بجلی سے محروم. ورجینیا، میری لینڈ اور پینسلوینیا میں برفانی طوفان کا خدشہ. الرٹ جاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. لالا سنبھل کے. دیکھ کے بھائی، ایک غلطی اور گیم اوور. ہر موڑ پہ خطرے ہزار. ہر میچ آریا پار. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی شروع 19 فروری سے. معاشی استحکام کی کہانی سنیے معیشت سے جڑی اہم شخصیات کی زبانی. سال 2024 پاکستان کی معیشت کی امپرومنٹ کے لیے بہترین سالوں میں سے ایک سال رہا ہے. مہنگائی کی اضافے کی شرح میں جو ہے وہ خطے خواہ کمی آئی ہے، جو 28% سے کم ہو کے اب 4% جو ہے وہ آ گیا. دسمبر کے جو نمبر آئے ہیں. اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں بہت ہی 80% کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. روپے کی قدر جو ہے وہ اسٹیبل رہی ہے، مستحکم جو ہے وہ رہی ہے. فارن کرنسی ریزروز ہمارے جو ہے وہ بڑھے ہیں. کاروباری جو ہے وہ کانفیڈنس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بہتری آئی ہے. تو اس سے امید کی جاتی ہے کہ 2025 جو ہے اس مستحکم اکنامک حالات کی وجہ سے وہ 2025 جو ہے وہ اور بہتر ہونا چاہیے. معیشت کا پہیہ پھر سے رواں.
उड़ान पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क की मईशत दुरुस्त गामज़न है, तहम हमें मईशत की पायदार तरक्की के लिए अभी मज़ीद सफ़र तय करना है। SIFC की बदौलत मुल्क में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश माहौल फराहम किया गया है। आलमी बैंक की हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी से दीगर समाजी शोबों में मुख्तलिफ मनसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। तफसील मोहम्मद मज़हर अब्बास से। इस्लामाबाद में आलमी बैंक के एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स के वफ्द से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की बरामदात, तरसीलात ज़र में इजाफे और शरह सूद कम होने से पैदावारी शोबे में सरमायाकारी बढ़ रही है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR की इस्लाहात में डिजिटाइजेशन पर काम तरजीही बुनियादों पर जारी है और मईशत की बेहतरी का सेहरा टीम की कोशिशों को जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इदारा जाती और माशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेजी से जारी है। बिजली शोबे की इस्लाहात से बिजली की बिला तातुल फरहमी और खसारे में कमी ला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि खसूसी सरमायाकारी काउंसिल ने मुल्क में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया है जो तमाम स्टेक होल्डर्स की शिरकत के मुनफरिद निज़ाम के तहत काम करता है। उन्होंने कहा कि आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकत दारी गुज़श्ता 7 दहाइयों पर मुहित है। हमारी तरजीह कर्जों की बजाय सरमायाकारी और शराकत दारी है। मुलाकात में शुरका ने पाकिस्तान में हुकूमत के जारी इस्लाहात के प्रोग्राम के मस्बत नताइज मौसूल होना खुशाइन करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि IFC के तहत पाकिस्तान के निजी शोबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। वक्त के शुरका ने पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की क़ियादत में पाकिस्तान का माशी इस्लाहात का सफर तेजी से जारी है। वक्त ने हुकूमत की तवानाई, सनद व बरामदाद, निजकारी, महसूलात और दीगर शोबों में इस्लाहाती इक़दामात की तारीफ की। याद रहे कि वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ये वर्ल्ड बैंक में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के पोर्टफोलियो के निगरान हैं। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने कहा कि पिछली हुकूमत ने बदतहजीबी और इंतकाम की सियासत अपनाकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया और मईशत को तबाह कर दिया। मौजूदा हुकूमत आवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए दिन रात कोशां है। हुकूमत की पॉलिसीज़ की बदौलत मौशी इस्तेहकाम हासिल हुआ है। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर कबूल किया है। सियासी वाबस्तगियों से बालातर रहते हुए आम आदमी की मुश्किलात का हल तरजीह है। अरकान असम्बली ने मरीम नवाज की बेमिसाल सियासी जद्दोजहद और अनथक मेहनत को सराहते हुए कहा कि पंजाब के अवाम को अपनी वज़ीर आला पर फ़ख्र है। पंजाब में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इकदाम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुखालिफिन की सियासत एक दूसरे पर दुश्मन तराजी और हाथापाई तक आ चुकी है। इल्ज़ामात की सियासत करने वाले मकाफात अमल का शिकार हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क माशी उड़ान भर चुका है। तफसील ताहिर जाफरी से। लाहौर में आसान कारोबार फाइनेंस के चेक और आसान कारोबार कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि नौजवान आगाह हैं कि किसने उनकी जिंदगियां तबाह करने की कोशिश की और कौन उनका मुस्तकबिल संवार रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम ने एहतजाज की सियासत मुस्तरद करके ये साबित किया है कि वो जलाओ घिराओ और फितना फसाद की सियासत से बेजार हैं। लोग देख रहे हैं कि उनकी जिंदगियों में बेहतरी आ रही है। नवाज शरीफ साहब का जो दौर था 2017 और 18, उसमें महंगाई 3% पे थी। पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी तबाह कर रहे थे और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़े। पंजाब में अकेले अगर मैं बात करूं तो 700 सड़कें हम बना रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। और कभी कोई ये कहता था कि सड़कें बनाने से कौन सी कौम तरक्की करती है। अगर सड़क बनाने से कौम तरक्की नहीं करती तो किस चीज़ से करती है? घेराव जलाव से तरक्की करती है या आग लगाने से तरक्की करती है या पुलिस वालों के सर फाड़ने से तरक्की करती है? वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि छोटे कारोबार मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन मंसूबों में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का विजन है कि नौजवानों को बिला सूद कर्जों की फराहमी यकीनी बनाकर कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के साथ साथ रोजगार के नए मौके पैदा किए जाएं। जितने लोगों को कर्जा मिलेगा उतनी आसूदगी घरों में आएगी और
जो इकॉनमी होती है उसका दारोमदार स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर होता है। ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबे लेके आ रहे हैं। पहली मर्तबा पंजाब के अंदर जो है इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं। अपना घर स्कीम में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज के फिगर्स मैं आपको बता रही हूँ, तकरीबन 13,000 जो अपने घर के लिए कर्जे जा चुके। 35 लाख फैमिलीज़ को पंजाब के अंदर रमज़ानुल मुबारक में 10,000 रुपया पर फैमिली जो है वो मेरी तरफ से उनके डोर स्टेप पे लिफाफा जो है वो डिलीवर होगा। तकरीब से सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन ने भी खिताब किया और आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस स्कीम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। तकरीब में वज़ीर आला मरीम नवाज ने आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के चेक और आसान कारोबार कार्ड तकसीम किए। आसान कारोबार कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए, जबकि आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज हासिल किया जा सकता है। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 36 अरब, जबकि आसान कारोबार कार्ड स्कीम के तहत 48 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कसीर जहती और ग्लोबल गवर्नेंस में इस्लाहात के मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदों मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिखार अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर न्यूयॉर्क में काउंसिल जनरल आमिर अतुज़ई भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि सऊदी अरब विजन 2030 के तहत पेशरफ्त कर रहा है। पाकिस्तान के लिए भी ये एक बेशकीमत मॉडल है। सऊदी अरब में उभरती हुई मईशतों से मुतालिक अल-अला कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंटरव्यू की तफसील शाहरुख शफी से। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जैसे जैसे पाकिस्तान मुआशी और ढांचा जाती इस्लाहात के मराहल से गुजर रहा है, हमें सऊदी विजन 2030 से बेशुमार सीखने के मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सऊदी अरब की कारोबारी शोबे में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। With respect to Saudi Arabia, obviously Pakistan and Kingdom of Saudi Arabia is long-standing partners. वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी अरामको की पाकिस्तान में पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सरमायाकारी और हुकूमती सतह पर जारी मुज़ाकरात को अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस सतह पर सरमायाकारी हुई है। I'm very grateful to Minister Al-Jaddan, Managing Director Kristalina, to have invited us to this conference. It's all about learning from others, the other emerging countries, the governors, the finance ministers who are here. उन्होंने मजीद कहा कि अल-आला कॉन्फ्रेंस उभरती हुई मईशतों के लिए मुआशी इस्तेहकाम और तावन पर तबादला ख्याल करने का एक अहम प्लेटफार्म है, जो तावन के इम्कानात को फरोग देने में मदद देगा, जिससे पाकिस्तान भी मुस्तफीद हो सकता है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी अरब में अल-अला कॉन्फ्रेंस 2025 में दूसरे रोज़ एक आला सतही पैनल मुबाहसे में शिरकत की, जिसमें उभरती हुई मईशतों की पायदारी और माली इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल हुआ। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मेज़बानी में होने वाले सेशन में वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसीज़, इस्लाहात और मालियाती हिकमत अमली पर रोशनी डाली। इस मुबाहिसे में तुर्की, ब्राज़ील और मिस्र के वज़राए ख़ज़ाना ने भी शिरकत की। पैनल गुफ्तगू में तरक्की पजीर मईशतों के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फाइव जी टेक्नोलॉजी और फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी के हवाले से मलेशिया की कंपनी और PTA के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर इस्लामाबाद में दस्तखत हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान 5G स्पेक्ट्रम के लिए तैयार है। उन्होंने इस ताउन को पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान टेलीकॉम, डिजिटल इख्तरा और कनेक्टिविटी में ताउन के लिए अहम संग मील करार दिया। This partnership marks a major milestone in strengthening the ties between our two countries. The impact of 5G technology extends beyond faster internet speeds. It is a catalyst for industrial, social, and economic transformation and growth.
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ انسانی سمگلنگ کے تدارک کے لیے حکومت سنجیدگی سے اقدامات کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمگلرز کی گرفتاری سمیت ان کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں، جبکہ قانون سازی کے ذریعے بھی سخت سزائیں اور جرمانے تجویز کیے گئے ہیں۔ اجلاس کی تفصیل شیئر کر رہے ہیں ڈاکٹر ملک عمر۔ قومی اسمبلی وقفہ سوالات میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ایوان کو بتایا کہ حکومت انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مستعدی سے کام کر رہی ہے۔ اب تک 436 اسمگلرز کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ قانون سازی کے ذریعے بھی اس جرم کے تدارک کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ جب کوئی اوور سٹے کرتا ہے اور اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اس کا نقصان کرتا ہے جو قانونی رستے سے اس ملک میں گیا ہے اور قانونی ڈاکیومنٹس پہ اس ملک میں رہائش پذیر ہے۔ ایسے طبقہ جو اقامہ کی ایکسپائریشن کے بعد، ورک پرمٹ کی ایکسپائریشن کے بعد بھی وہاں پہ رہائش پذیر رہتا ہے، وہ دقت اور مشکلات پیدا کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ڈاکیومنٹس پورے ہیں۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اپوزیشن کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ پہلے جیل سے اپنے حمایتی باہر نکلوانا چاہتے ہیں، ان کی تمام تر سیاست ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ان کے رویے، انہوں نے پاکستان سنوارنے پہلے برباد کر کے دے گئے ہیں پاکستان کو۔ آپ نے صحیح کہا کہ معاملے یہاں پہ طے ہونے چاہیے، یہ وہاں پہ طے کرنا چاہتے ہیں، یہ پہلے جیل سے بندے لانا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے، یہ پہلے 60 ارب کی کرپشن کا دھونا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے ہمارے ساتھ۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ میں نے حزب اختلاف کے 11 ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، تاہم اپوزیشن اس معاملے پر غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ پروڈکشن آرڈر کر دیے، تشریف بھی لے آئے، پھر بھی یہ کہا گیا کہ اسپیکر پروڈکشن آرڈر نہیں کرتا۔ ایک کے جو گجرات سے تھے ان کے پہلے میں نے کیے، 11 ممبران کے اس کے بعد کیے، اس کے بعد ایک اور ممبر کیے۔ یہ اگر یہی جھوٹ استعمال کیا جائے گا تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا میں بائی دا بک چلوں۔ قومی اسمبلی میں دیوانی عدالت ترمیمی بل 2024، پاکستان ساحلی محافظین ترمیمی بل 2024، افراد کی اسمگلنگ کی روک تھام ترمیمی بل 2025، مہاجرین کی اسمگلنگ کا تدارک ترمیمی بل 2025 اور امیگریشن ترمیمی بل 2025 منظور کر لیے گئے ہیں۔ پانچوں بل وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیے۔ توجہ دلاؤ نوٹس پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ جگوٹ روڈ کی تعمیر کا PC1 منظور ہو گیا ہے، جلد کام کا آغاز کر دیا جائے گا، جبکہ اسکندر اعظم روڈ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہ منصوبہ زیر التوا ہے، یہ اہم روڈ بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گئی۔ ڈاکٹر ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے سمیت 2 قانونی بلز منظور کر لیے، جبکہ ایوان میں مجموعی طور پر 5 قانونی بلز پیش کیے گئے۔ تفصیل ارسلان اسد سے۔ 2 دن کے وقفے کے بعد سینٹ اجلاس ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ نجی کارروائی کے دن سینیٹر دنیش کمار نے اراکین پارلیمنٹ تنخواہیں اور الاؤنسز ترمیمی بل 2025 ایوان میں پیش کیا، جس کی ارکان نے کثرت رائے سے منظوری دی۔ قومی اسمبلی پہلے ہی اس بل کی منظوری دے چکی ہے۔ بل کے تحت ہر رکن پارلیمنٹ کی تنخواہ اور مراعات گریڈ 22 کے وفاقی سیکرٹری کے برابر ہو جائے گی۔ بل کے محرک سینیٹر دنیش کمار نے کہا کہ بل پر PTI کے تمام ارکان نے دستخط کیے ہیں، میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اگر کوئی رکن پرانی تنخواہ اور مراعات لینا چاہتا ہے تو وہ سینٹ سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دے۔ سینٹ نے انسداد عصمت دری تحقیق و مقدمہ ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا۔ بل سینیٹر ہمایوں محمد نے پیش کیا۔ سینٹ میں مجموعی طور پر 5 قانونی بلز پیش کیے گئے، جن کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھجوا دیا۔ اپوزیشن کے سینیٹر محسن عزیز نے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پر تکنیکی مشاورت کی تجویز دی۔ خزانے کے وزیر مملکت علی پرویز ملک نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے آئین میں طریقہ کار موجود ہے، ہم آئین کے دائرہ کار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اپوزیشن نے ڈپٹی چیئرمین کی طرف سے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی عدم منظوری اور بل مؤخر کرنے پر ایوان میں شدید احتجاج کیا۔ چیئرمین ڈائز کا گھیراؤ کیا گیا۔ PTI ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی، شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کی، جس پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر نے کہا کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور ایوان کو قواعد ضوابط کے تحت ہی چلایا جائے گا۔ بعد میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے اجلاس کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے بحرین کے اسپیکر احمد بن سلمان المسلم کی قیادت میں
बहरीन के पार्लिमानी वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती मवाक़े और पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि दोनों ममालिक अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पार्लिमानी रवाबित दोनों अक़वाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बहरीन के स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान की पार्लिमान के साथ IT के शोबे में हर मुमकिन ताउन करेंगे। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस्लामी और तारीख़ी किताबों के खिलाफ क्रैकडाउन पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस इक़दाम का मकसद कश्मीरियों को उनकी इस्लामी शनाख्त से दूर करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर क़यादत हिंदुत्वा हुकूमत की तरफ से इस्लामी लिटरेचर को निशाना बनाने और भारतीय पुलिस की तरफ से पूरे मकबूजा इलाके में किताबों की दुकानों पर छापों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि काबिज़ इंतज़ामिया RSS के एजेंडे पर अमल पैरा है ताकि स्कूलों में हिंदुत्वा नज़रिया मुसल्लत करके मकबूजा कश्मीर के इस्लामी तशख़्ख़ुस को तब्दील किया जा सके। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज़ उमर फारूक ने बडगाम में एक तकरीब से खिताब करते हुए खबरदार किया है कि खुसूसी हैसियत की मनसूखी, ज़मीनों और जायदादों पर कब्ज़े और मकबूजा इलाके की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को तब्दील करने समेत कश्मीर दुश्मन इक़दामात की वजह से मकबूजा जम्मू कश्मीर की बका को ख़तरा लाहक है। उन्होंने तमाम बिरादरियों पर जोर दिया कि वो इन खतरात के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएँ। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए अलहदा बस्तियों के क़याम की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे खेल के मैदान में। लाला संभल के, हर तरफ खतरा है। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। इस्तेहकाम की कहानी सुनिए मईशत से जुड़ी अहम शख्सियात की ज़बानी। अब गवर्नमेंट और अपोजिशन अगर एक टेबल पे बैठना शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये इंडिकेटर और आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये वक्ती परेशानियां थी जो 2024 में रहे। मुझे तो उम्मीद है और हम सब बिल्डर्स को भी उम्मीद है कि पाकिस्तान के तमाम बिल्डर्स अब ये समझते हैं कि अब हमारे हालात जो है वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे और बिल्डर्स की अपने जो डिफिकल्टीज है ऑन ग्राउंड बहुत सारी डिफिकल्टीज है हमारी जो आर्मी चीफ साहब ने इस वक्त यहाँ मुलाकातें की, यहाँ बिजनेस कम्युनिटी से उसमें आबाद के लोगों को बुलाया और उन्होंने हमारी डिफिकल्टीज को सुना और ये इस बात पर जोर दिया कि भाई यहाँ से जो लोग पैसा पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं उनको पैसा लेके ये नहीं आ रहे, आपकी डिफिकल्टीज क्या है। वो बिल्डर्स ने तमाम डिफिकल्टीज बताई और उस पर अमल भी शुरू हो गया। हमें तो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है ना कि अगर गवर्नमेंट के लोग और एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बैठ के इन डिफिकल्टीज को हमारी दूर करें। मईशत का पहिया फिर से रवां, उड़ान पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। हम खेलने आए पूरी तैयारी से, हम जिम्मेदारी से खेलने आए गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। स्पोर्ट्स न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे ICC चैंपियंस ट्रॉफी का। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 2 दिन बाकी हैं। 9 मार्च तक जारी रहने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। इफ्तिताही मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। शायकीन चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर देखने के अलावा इवेंट्स के हवाले से लाइव रिपोर्टिंग, खबरों, तजज़ियों और तबसरों से PTV न्यूज पर लुत्फ अंदोज हो सकेंगे।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम लाहौर पहुंच गई है। टीम 2 मरहलों में लाहौर पहुंची। पहले मरहले में कप्तान स्टीवन स्मिथ, कोचेज और स्पोर्ट्स स्टाफ पर मुश्तमिल 14 रुकनी दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। दूसरे मरहले में 15 खिलाड़ियों समेत 17 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंचा, जिसमें मार्नस लेब्यूशन, कैलन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट और एडम जंपा शामिल थे। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को कज़ाकी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबको इंतजार है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े टाकरे का। आईसीसी ने इस अहम तरीन मैच के लिए इजाफी टिकट जारी किए, जिसे शायकीन ने हाथों हाथ खरीद लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन टिकट्स खरीदने के लिए 20 से 30 हजार शायकीन मुंतजिर थे, मगर इजाफी टिकट्स चंद ही घंटों में फरोख्त हो गए। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा, जिसका शायकीन को शिद्दत से इंतजार है। मैच के लिए इब्तदाई टिकट भी चंद घंटों में फरोख्त हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में अपने एजाज का दिफा करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी हैं। खिलाड़ियों ने कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ओवल ग्राउंड में 3 घंटे तक प्रैक्टिस की। ट्रेनिंग सेशन के आगाज में खिलाड़ियों ने एक्सरसाइज ड्रिल्स में हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने कोचेस की निगरानी में बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच बुध को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देख सकते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस राउफ का कहना है कि पाकिस्तानी टीम का बॉलिंग का शोबा मजबूत है। हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर इसे यादगार इवेंट बनाना चाहते हैं। कोशिश यही है कि यार पाकिस्तान को एक ऐसा इवेंट जिताया जाए जिससे पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको खुशी मिले। और जिस तरह हमें लास्ट जितने भी 3-4 साल से क्रिकेट खेली है उसमें 2 फाइनल खेलना, एक एशिया कप का फाइनल खेलना, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना, एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना, तो एक वो दिल में जरूर एज अ प्लेयर है कि यार एक पाकिस्तान के लिए एक ऐसी ट्रॉफी जीतनी चाहिए। रिटायर हो तो एक आपके ऊपर टैग लगा होता है यार कोई एक टूर्नामेंट जीते हुए ये प्लेयर। धड़के दिल जोर से धड़के देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। कौन हारे कौन जीते कोई भी ना जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। खेलने आए हम खेलने आए, पूरी तैयारी से हम जिम्मेदारी से खेलने आए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खुसूसी तकरीब लाहौर के शाही कला में मुनक्किद हुई। तकरीब में PCB और ICC हुक्काम के अलावा 2017 की चैंपियन टीम ने भी शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं मुअज़्ज़मुद्दीन की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान 29 साल बाद ICC इवेंट की मेजबानी कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की रंगारंग कर्टन रेजर तकरीब शाही किला लाहौर के दीवाने आम में मुनक्किद हुई। तकरीब में 2017 के फातिहा खिलाड़ी, ICC और PCB के वफ्द समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयार हैं। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं। पूरी दुनिया की नजरें चैंपियंस ट्रॉफी पर मरकूज हैं। I assure every cricket fan and supporter that Pakistan is ready for the Champions Trophy. For nearly 3 decades, 2 generations of cricket lovers in Pakistan were deprived of experiencing a global ICC event on home soil. That changes now. This is your moment to fill the stadiums. तकरीब से ICC के CEO जेफ एलरडाइस ने भी खिताब किया, जबकि साबिक कप्तान सरफराज अहमद, न्यूजीलैंड के टिम साउथी और साउथ अफ्रीका के JP डुमिनी ने पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। रंगारंग तकरीब में मुख्तलिफ गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू भी जगाया। तकरीब के लिए शाही किला को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया था और मरकजी दरवाजे पर खूबसूरत अंदाज में चैंपियंस ट्रॉफी की प्रोजेक्शन भी की गई थी। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर।
चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। क्रिकेट लवर्स मैचेस से लुत्फ अंदोज होने के लिए बेकरार हैं। जहां नौजवान गली मोहल्लों, पार्क्स और ग्राउंड्स में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, वहीं अधेड़ उम्र के अफराद भी क्रिकेट फीवर में मुब्तला हैं। शायकीन का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से साबित होता है कि पाकिस्तान के खेलों के लिए महफूज मुल्क है। हमसाया मुल्क को हठधर्मी छोड़कर अपनी टीम पाकिस्तान भेजनी चाहिए। मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा खुश हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हमारे पास होने जा रहा है कि होपफुली कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको कामयाबी दे। तक इंडिया का ताल्लुक है कि पाकिस्तान में आके नहीं खेल रही है। अगर वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में आके खेलते, दोनों मुल्कों में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ता। काफ़ी एक्साइटेड है जी, आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आ रहे हैं और एक बहुत अच्छा साइन है ये। बल्कि इंडिया को भी चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे। हमसाया ममालिक है, उसको चाहिए कि पाकिस्तान में आके खेले। चैंपियंस ट्रॉफी के वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 305 रन बनाए। सेंचुरी स्कोर और 110 रन बनाकर आउट हुए। सदीकुल अतल ने 52 और हशमतुल्लाह शाहिदी ने 40 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड ने मैच में 8 बाउलर्स आजमाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने हदफ 47.5 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। डेवन कानवे 66, मार्क ट्रिपमैन 47, गैलन फिलिप्स 46 और डैरिल मिचेल 36 रन बनाकर नुमाया रहे। और अब आपको लिए चलते हैं मेन स्टूडियो। बहुत शुक्रिया सोनिया आपका। नाज़रीन, कुछ और खबरें शामिल करेंगे। वफाकी वजीर अहद चीमा से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत का हदफ अगले 3 से 4 साल में 50 सरकारी इदारों की निजकारी करना है। सरकारी इदारों बिलखुसूस बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मौसर इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत मस्बत समत में गामजन है। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने हुकूमत के जामे इस्लाही एजेंडे को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्याती अहदाफ के हुसूल में शराकत दारी बरकरार रहेगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि बानी PTI NRO चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं। मुरीद के में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि चोलिस्तान में ग्रीन पंजाब प्रोग्राम की मदद से 5000 एकड़ से 1 लाख एकड़ तक गंदम की पैदावार बढ़ाएंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि रमज़ान उल मुबारक में चीनी 130 रुपए किलो फरोख्त होगी। अगर कोई उस पर अमल नहीं करता तो उसके खिलाफ इकदाम किए जाएंगे। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम की ज़ेर सदारत वापटा CBM मनसूबों के हवाले से इजलास में गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की गई। वफाकी वजीर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकीकी मसाइल के हल की ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि सनतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल का हल हमारी तरजीह है। इस्लामाबाद में प्री बजट सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर जिस चीज़ ने आगे बढ़ाना है, यकीनी तौर पे वो हमारा प्राइवेट सेक्टर ही है। और प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करके, प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करके, प्राइवेट सेक्टर को मज़ीद उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले जा के बेहतर करके ही हो सकता है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट इस पूरे सिचुएशन में एक मेन फैसिलिटेटर का ही किरदार अदा कर सकता है। इस इनिशिएटिव्स के साथ चीज़ों को जो आगे ले जाने का मकसद है वो है चीज़ों के अंदर प्रोग्रेस लाना है, चीज़ों को बेहतर करना है। एंड आई थिंक सो इन द लास्ट 6 months TDAP हैज़ डन अ वेरी वंडरफुल जॉब। शहबाज शरीफ साहब इसको बड़ा क्लोजली देखते हैं, हमें भी सेंसिटाइज करते हैं, बल्कि इसका फॉलोअप भी हमसे लेते हैं कि हर इंगेजमेंट, हर काम, हर फेयर, हर एग्ज़िबिशन, हर एक्सपो, हर उस इशू को जो हमने इंडस्ट्री के साथ लिया है उसका क्या रिज़ल्ट है। पंजाब में बदलने जा रहा है सफ़र का अंदाज। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस चंद रोज़ में शुरू होने को है। मंसूबे की तफसील जानते हैं वरदा सलीम से।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नए दौर का आगाज। पंजाब की तारीख में पहली बार सूबाई दार हुकूमत लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस शहरियों को सफरी सहूलतें मुहैया करेंगी। सूबे के पायलट प्रोजेक्ट की रिहर्सल मुकम्मल कर ली गई है और रवा हफ्ते नई बसेस बाकायदा शेड्यूल रूट के तहत सफरी सहूलत का आगाज कर देंगी। 27 बसें आई हैं पहले, ये रूट 3 पर चलेंगी जो कि रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक चलेगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी लाई जा सकती थी उस पर वर्किंग की गई और बहुत अच्छा फैसला किया गया। चीन से मंगवाई गई आरामदेह इलेक्ट्रिक बसों के लिए 9 मखसूस चार्जिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं और दीगर जदीद सहूलियात भी दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये न्यू बसेस का आगाज़ किया गया है। इससे लाहौर में पोल्यूशन में कमी आएगी, स्मोक में कमी आएगी और लोगों को बहुत सी सहूलियात मुयस्सर होंगी। इस मंसूबे से शहरियों को जदीद सफरी सहूलतों की फरहमी के साथ साथ ईंधन की बचत भी होगी। स्मोक का तदारुक और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का आगाज होगा। बसेस एक बार चार्ज होने के बाद 250 किलोमीटर का फासला तय कर सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अवाम को जदीद सफरी सहूलियात की फरहमी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से पाकिस्तान में इटली की सफ़ीर मैरिलिना अर्मेलिन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और अदलिया से मुतालिक मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल किया। चीफ जस्टिस ने इतालवी सफ़ीर को पाकिस्तान के आइन के ढांचे से मुतालिक आगाह किया और रियासत के सतूनों के माबैन इख्तियारात के तवाज़ुन से मुतालिक रोशनी डाली। चीफ जस्टिस ने सफ़ीर को मुतवक्के अदालत इस्लाहात से आगाह किया और बताया कि तिजारती राहदारी से मुतालिक मुकदमात और तनाज़ात के फौरी हल के लिए ज़िला अदलिया, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सतह पर खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। इतालवी सफ़ीर ने दोनों ममालिक के माबैन अदालत निज़ाम में बाहमी प्रोग्राम्स के तबादलों की तजवीज़ दी। सुप्रीम कोर्ट में केस मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा, जस्टिस शहजाद अहमद पंजाब, जस्टिस हाशिम खान काकड़ बलोचिस्तान, जस्टिस सलाहुद्दीन सिंध, जबकि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की ATC अदालतों के निगरान मुकर्रर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सपुर्द कर दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कमेटियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ्रांसीसी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान बातचीत में ताज़ा आलमी सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम की कोशिशें भी ज़ेर बहस आईं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुश्तरका ताउन के शुबों के फ़रोग़ का भी जायज़ा लिया गया। दूसरी जानिब फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने फ्रांस के हम मनसब इमैनुअल मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ते में फ़लस्तीनी आवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करने, फौरी इंसानी इमदाद की फ्राहमी, गाज़ा की पट्टी में जंगबंदी को मुस्तहकम करने, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के गाज़ा का कंट्रोल संभालने और गाज़ा की तामीर नौ पर जोर दिया। उधर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान पर हमले जारी हैं। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक जनूबी शहर सईदा में एक गाड़ी पर इसराइली हमले में एक शख्स जाँ बहक हुआ। इसराइली वजारत दिफा ने दावा किया है कि लेबनान के जनूबी शहर सईदा में एक कार पर इसराइली ड्रोन हमले में हमास के सीनियर रहनुमा मोहम्मद शाहीन को निशाना बनाया गया। उनके मुताबिक मोहम्मद शाहीन लेबनान में हमास की कार्रवाइयों का सरबराह था। मोहम्मद शाहीन लेबनान से इसराइल के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस था। अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और शदीद सर्दी से 10 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बारिश और सैलाब से केंटकी रियासत सबसे ज्यादा मुतासिर हुई, जहां 9 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। इमदादी कारकुनों की जानिब से सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा रियासत में 40,000 अफराद बिजली की सहूलत से महरूम हो गए। हुकाम की जानिब से वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान के इम्कान के बाइस अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, कुछ और खबरें शामिल करेंगे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई अस्करी टावर हमला केस समेत 6 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म दोबारा आयद करने की हिदायत की है। ATC अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केसेस की समाअत की। खदीजा शाह, सनम जावेद और आलिया हमजा समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, जबकि शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल की गई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की मुकदमात में फर्द जुर्म में तरमीम की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केसेस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई।
سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ناقابل فراموش ہے، ریاست سے مقدم کچھ نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا کہ 9 مئی کو معصوم لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسایا گیا۔ تحریک انصاف کی موجودہ سیاست کمپرومائزڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان بنانے کے دعوے دار چوروں کے بھی باپ نکلے۔ جنہوں نے کام کیا ان کو سزا ہونی چاہیے، ہوگی۔ اس میں جو جنہوں نے نعرے ڈالے، جو بے بس تھے، جو معصوم تھے، جو مس گائیڈ ہو گئے، ان کو میرے خیال سے ریاست کو رحم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم بھی اس کی اپیل کریں گے، کوشش کریں گے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف سے نکالے جانے والے رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال کے دوران پی ٹی آئی نے دھکم پیل کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ پارٹی رہنماؤں کو خسر پھسر کی بنیاد پر پارٹی سے نکالا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی میں مطلق العنانیت ہے۔ اس طرح مجھے نکالا گیا نا، پی ٹی آئی میں اس طرح نکالے جانے کے بعد کسی کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ کسی کو بھی اس طرح خسر پسر کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اصولی طور پہ فیصلے ہونے چاہیے کہ پارٹی میں جو ہیں کسی کو نکالنے کے لیے کوئی جواز تو ہونا چاہیے۔ اتنی بھی ہٹ دھرمی اور مطلق العنانیت نہیں ہوتی ہے۔ غلام تو ہم ہیں ہی نہیں، آواز تو اٹھائیں گے۔ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن نہیں، صرف کندھے درکار ہے۔ جمہوریت کو اپنی جاگیر سمجھنے والوں کی منمانی کی سیاست اب نہیں چلے گی۔ مشیر قانون نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایوان میں حاضری لگا کر مراد حلال کریں اور پھر واک آؤٹ کر کے جائیں۔ یہ کیسی سیاست ہے؟ اگر واقعی اپوزیشن کو سیاست کا شوق ہے تو پہلے جمہوریت کے اصول سیکھ کر آئیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست کا مقصد انتشار پھیلانا اور ملکی اداروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ کراچی میں میڈیا گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کو انتشار کی سیاست کو ہوا دی، جبکہ آئی ایم ایف کو خط لکھ کر کہا گیا کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر نے عوام کو مشکلات میں دھکیلا۔ خیبر پختونخوا میں بد انتظامی کی وجہ سے عوام مشکلات میں ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سینیٹرز اور ایم این ایز کے وفد کے ہمراہ آذربائیجان کے 5 روزہ سرکاری دورے پر باکو پہنچے۔ آذربائیجان میں پاکستانی سفیر اور آذربائیجان پاکستان دوستی کے کنوینر کمال الدین غفاروف نے ان کا استقبال کیا۔ چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں وفد ایشیائی پارلیمانی اسمبلی کے سالانہ اجلاس اور دیگر اہم سیشنز میں شرکت کرے گا۔ چیئرمین سینٹ آذربائیجان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ آپ سے ملاقات ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ الیکٹرک بسز کا زمانہ ہے تو آہستہ آہستہ ہمیں ایونچولی اسی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے صوبائی تاریخ میں پہلی بار 19 فروری 2025 سے شہر لاہور میں الیکٹرو بس سروس کا افتتاح۔ موبائل چارجنگ، روٹ ڈسپلے اور وائی فائی کی سہولیات۔ خواتین کو ہراسمنٹ سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے الگ سیکشن اور کیمروں کی تنصیب۔ ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے کرایوں کی ادائیگی۔ گرین پنجاب کی تشکیل کے لیے پرعزم مریم نواز۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی، حکومت پنجاب۔ معاشی استحکام کی کہانی سنیے معیشت سے جڑی اہم شخصیات کی زبانی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے انڈیکیٹرز جو ہیں پازیٹیو ہیں، اور لائک اکانومی سٹیبل ہے، اور فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج ہمارا ماشاءاللہ پیک پہ ہے، انٹرسٹ ریٹ کافی کم ہو گیا ہے، کہاں 23% تھا آج 13% ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بھی کم ہوگا۔ انفلیشن بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، بلو 5% ہو گئی ہے، تو اس سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور بڑی گورنمنٹ کی ایک کانسٹنٹ پالیسی ہے جس سے لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہوا ہے، اور انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اور چیزیں انشاءاللہ بہتر ہیں، ایکسپورٹ بھی ہماری بڑھ رہی ہے۔ معیشت کا پہیہ پھر سے رواں، اڑان پاکستان۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان توانائی، انفراسٹرکچر اور نجکاری کے منصوبوں پر سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع ہیں۔ آذربائیجان پاکستان کے موٹر وے اور دیگر انفراسٹرکچر منصوبوں میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات میں اضافہ خوش آئند ہے۔
वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के वफ्द के दरमियान माशी ताउन को मजबूत बनाने पर इस्लामाबाद में गुफ्तगू हुई। वज़ीर मनसूबा बंदी ने उड़ान पाकिस्तान 5 ईज नेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने, तवानाई बहरान के हल, ख़वातीन की मौशी शमूलियत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत पर जोर दिया। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने पाकिस्तान की जामे और पायदार तरक्की में ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। विफाकी वजीर कानून आजम रजी तारट कहते हैं कि टैक्स तनाज़ात के बायस कारोबारी बरादरी पर गैर ज़रूरी बोझ बढ़ रहा है, उसे कम करने के लिए एक मौसर निज़ाम तश्कील देना होगा। इस्लामाबाद में टैक्स तनाज़ात के हवाले के हल के से ट्रेनिंग के शुरका से खिताब में उन्होंने कहा कि टैक्स मसाइल को सालिसी के ज़रिए हल करना एक मुस्बत कदम होगा। आजम रजी तारट ने कहा कि हुकूमत ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रही है जिसके ज़रिए टैक्स तनाज़ात को फौरी और मुनसिफाना तरीके से हल किया जा सकेगा। माहिरीन टैक्स का कहना था कि टैक्स तनाज़ों को सालिसी के ज़रिए हल करने से कारोबारी तबके और हुकूमती इदारों के दरमियान एतमाद में इजाफा होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि 5G आने से GDP में खातिर खा इजाफा होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मई या जून में स्पेक्ट्रम ऑफर करने जा रहा है। शिज़ा फातिमा ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से $25 अरब का टारगेट बेहतर कनेक्टिविटी से मुकम्मल करेंगे और $3.2 अरब की IT बरामदात को $15 अरब तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अक़वाम मुत्तहिदा की पॉपुलेशन फंड के नुमाइंदे ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 7वें NFC अवार्ड में पहली बार वसाइल की तकसीम के लिए मुख्तलिफ मेयारात अपनाए गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि सेल्स टैक्स मुकम्मल तौर पर सूबों को वसूल करने दिया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की तरक्की और आवाम की बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए NFC अवार्ड का फॉर्मूला तय होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से CEO कैस्को सैयद यूसुफ शाह ने कोयटा में मुलाकात की और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग की। वज़ीर आला ने बिजली की तरसील की बेहतरी के लिए ठोस इक़दामात की हिदायत की और कहा कि मौसम गर्मा की आमद से कबल ही गर्म इलाकों में बर्क़ की किल्लत और मसाइल का सद्देबाब किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि अरकान सूबाई असम्बली की तजवीज़ करदा बिजली की स्कीम्स पर काम की रफ्तार तेज़ की जाए और आवाम को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के साबिक सीनियर न्यूज़ एडिटर और वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के साबिक एडिटर सैयद रज़ी अहमद रिजवी को इस्लामाबाद में सुपर्द खाक कर दिया गया। वो हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। तफसील सईद वज़ीर से। मारूफ सहाफ़ी सैयद रज़ी अहमद रिजवी की नमाज जनाजा में सीनियर सहाफ़ियों, PTV के मुलाजिमीन और मरहूम के अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। सैयद रज़ी अहमद रिजवी ने ढाका में न्यूज़ एजेंसी PPI से सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया। मरहूम 1967 में पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता हुए। उन्होंने हालात हाजरा के शुबा में डिप्टी कंट्रोलर की हैसियत से भी फ़राइज़ अदा किए। उनने हमें बहुत अच्छी तरह पाला और जो अब्बू ने हमें बताया था वो सबसे बेस्ट एडवाइस थी कि एजुकेशन और अपनी हेल्थ और सेहत सब रखो, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। किसी भी मौके पे ऊंची आवाज़ इनसे नहीं सुनी, कोई डांट डपट बच्चों को हमारे साथ। वो एक इंतहाई मिलनसार आदमी थे और PTV न्यूज़ के वो वाहिद आदमी थे जो नॉन कंट्रोवर्शियल थे। कभी उन्होंने ऊंची आवाज़ पे बात नहीं की, सबके साथ वो लोगों को सिखाया है, काम सिखाया है। PTV न्यूज़ के बानियों में उनका शुमार होता है रज़ी अहमद रिजवी साहब का, चूँकि उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। उन्होंने बहुत खिदमात अंजाम दी हैं ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक। मीडिया के लिए उनकी खिदमात जो हैं ये एक तारीख का हिस्सा है। रज़ी अहमद रिजवी 1985 में वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक होकर वाशिंगटन चले गए, जहां उन्होंने 38 साल खदमात अंजाम दी। सईद वज़ीर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक 19 फरवरी से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई है। मरी और गलियात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, सरगोदा, मियांवाली, बखर, खुशाब,
حافظ آباد میں بارش کا امکان ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، مانسیرہ، ایبٹ آباد میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ بلوچستان میں کوئٹہ، زیارت، چمن اور دیگر علاقوں میں بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لہ -6، کوپس -4، کالام، بگروٹ، زیارت -3، مالم جبہ اور پارا چنار میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے سب سے بڑے شہروں کی درجہ حرارت کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں آج کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 11، کراچی 19، پشاور 7 اور کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں کی بات کریں تو سری نگر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں 7، لہ میں -6، پلوامہ 2 اور اننت ناگ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ اب آپ کو واپس لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ قدیر جی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔